ਹੈਲੋ एवरीवन मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल राइट ऑन। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ, ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦਾ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQs ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ MCQs ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋ MCQs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਆਰਡਰ 1। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4। ਦਿਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫੋਰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ 1 ਆਰਡਰ ਦਾ। 1 ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, 1 ਆਰਡਰ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੇਮ ਆਰਡਰ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, 1 by 1 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ 1 by 1 ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 2। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, 1 ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਉਹ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਲੀ ਫੋਰ ਫਸਟ ਆਰਡਰ। ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗੀ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਵੀ 2 ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਵੀ 2 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 by 2 ਦਾ ਜਾਂ 3 by 3 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 10, ਔਰ 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 12। ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਮਾਈਨਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਡਰ 2 ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ -2। ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? -2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ।
ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 5 = 10, 4 3 = 12 ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ -2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, 4 0 3 -2, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ 4 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ -0 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ -8, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। 0 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0। ਮਤਲਬ ਸਿੰਬਲਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ -8। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਆਰਡਰ 3, ਕਿ ਮੈंने ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 2 3 6 0 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 7 0। ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3/3 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈंने ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਕਿ मैंने सिर्फ फस्ट रो यूज़ करके अपना पूरा का पूरा जो डिटरमिनेंट है उसमें सॉल्व करना है। वो फस्ट रो भी हो सकती है, तुसी अगर चाहो तो सैकेंड भी हो सकती है, तुसी अगर चाहो तो थर्ड भी हो सकती है, ठीक है। और अगर गल करो तो आप सिमिलरली आप कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं। फस्ट कॉलम भी हो सकती है, सैकेंड कॉलम भी हो सकती है और थर्ड कॉलम भी हो सकती है। एक बार आप R1 के अकॉर्डिंग निकाल के देख लें। R1 तो मेरा मतलब की है फस्ट रो, ठीक है। हुण फस्ट रो के अकॉर्डिंग किवें करांगे, तुहानूं याद होना कि जो आप माइनर्स कर रहे थे उदों मैंने तुहानूं दस्सिया सी कि जो सिंबल्स ने वो किस फॉर्म दे विच हुंदे ने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इन्हां सिंबल्स नूं आपां ध्यान विच रख के ही की करनी है, डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। 2/2 दे विच भी ही जो हुंदे सी वो तो चलो क्रॉस प्रोडक्ट नाल ही हो गया। तो अगर आपां गल करिए फॉर एग्जाम्पल हुण आपां फस्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो फस्ट रो के अकॉर्डिंग ये एलीमेंट्स यूज़ होणगे तो ये सिंबल्स यूज़ होणगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हुण जिवें सब तो पहला मेरे कोल की है 1 है, ठीक है जी। तो फस्ट एलीमेंट मेरे को की है 1 है। हुण 1 लिए मैं किहड़ा सिंबल यूज़ कर रही हूँ, इत्थे पॉजिटिव सिंबल यूज़ कर रही हूँ, मतलब मेरे को 1 जो है उसके मूरे माइनस नहीं लगेगा, क्लीयर है। हुण अगर आप गल करिए हुण इहदे विच मैंने की काम करना है, मैंने फस्ट एलीमेंट दी रो और फस्ट एलीमेंट का जो मैंने कॉलम सी वो उड़ाता। तो मेरे को की रह गया पिछे, तो मेरे को की रह गया, सॉरी मेरे को जस्ट इन्नी जो एक मैट्रिक्स है वो रह गई, ठीक है। और ये मैंने की करना है, जिमें आप 2/2 का डिटरमिनेंट निकालिया सी वो मैं निकालना है, और जो 1 सी वो मैंने पहला ले लिया, ठीक है। हुण ये देखो इसका जो मैं डिटरमिनेंट निकालूंगी 0 ना मल्टीप्लाई करांगे 0 आ जाएगा, माइनस 2 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे कि आ जाएगा 14, ठीक है। मतलब फस्ट रो का अकॉर्डिंग अगर मैं कर रही हूँ तो मैंने पहला फस्ट कॉलम फस्ट एलीमेंट ले लिया, उसका मैंने रो और उसी दे मैंने कॉलम भी की करते उड़ाते, जस्ट मेरे को की बन गई फिर 2/2 की एक मैट्रिक्स बन गई। और उसका जिमें आप 2/2 का डिटरमिनेंट निकालते हैं सिंपल बिल्कुल ईजी क्रॉस प्रोडक्ट करके माइनस उस तरीके नाल उसका क्या आ जाएगा 1 × 0 - 14। बट इत्थे मैंने की ध्यान रखना है, नाल सिंबल नूं लेके चलना है, साइन नूं लेके जरूर चलना है, ठीक है। हुण अगर आप गल करिए अगे आ जाता जी मेरे को सैकेंड मेरे को की है, सैकेंड जो एलीमेंट है मेरे को किहड़ा है 6 है। हुण मैं 6 की रो भी उड़ा रही हूँ और 6 का कॉलम भी उड़ा रही हूँ, तो मेरे को की बच जाता है पिछे 0 2 3 7। चलो इस लिख लैने पहला। हुण जिवें मैंने की लिया सैकेंड एलीमेंट 6 लिया और 6 के नाल मेरे को सिंबल किहदा आएगा
माइनस आएगा। अगर 6 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ माइनस ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੂੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ठीक है, माइनस। उस तो बाद देखो मेरे को किहड़ी मैट्रिक्स बच जाती है, अगर इसनों रफली देखिए तो मेरे को बच जाती है 2 3 7 0। आ 4 एलीमेंट्स बच जाते हैं, मतलब इन्हों का मैंने एज 2/2 जो आप निकालते हैं डिटर्मिनेंट उवें निकालना है। 2 नूं पहले 0 नाल करोगे कि आ जाएगा 0, माइनस 3 नूं 7 नाल करोगे कि आ जाएगा 21। तो बिल्कुल इस फॉर्म के आप कह सकते हैं कि जो सॉल्वेशन है वो करनी है, ठीक है जी। नैक्सट अगर आप गल करिए इस तो बाद देख रहे हो तुम थर्ड मेरे को की है -3 और इस दे नाल सिंबल किहड़ा पॉजिटिव। अगर मैं प्लस दे नाल माइनस लगा दा कोई फर्क नहीं पै रहा, ठीक है, और मेरे को वापस की बन रहा माइनस ही बन रहा, तो मेरे को की बन गया इत्थे कितना आ गया -3 आ गया। क्लीयर इज इट। हुण अगर आप अगे गल करिए इस तो बाद देखो मैंने की किया, थर्ड की जो रो सी और थर्ड के जो कॉलम सी वो की करते वैनिश करते। हुण थर्ड ते रो तो कॉलम जो वैनिश करांगे तो अपने को ए भी चला जाएगा और ए भी चला जाएगा, तो पिछे मेरे को किहड़े बच जाते हैं, पिछों मेरे को बच जाते हैं ए वाली जो पूरी की पूरी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हुण जो इसनों मैं सिंपली सॉल्व करूँगी 2 2 का कितना हुंदा है 4 और 3 0 का कितना हुंदा है 0। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे वाली कैलकुलेशन है, बस एक बार मैथड को समझने की जरूरत है कि आप 3/3 का डिटर्मिनेंट किदां करते हैं, ठीक है जी। नैक्सट अगर आप गल करिए हुण जो मेरे को ये जो पूरा का पूरा एक तरीके नाल बन गया ना, सिर्फ इसनों सॉल्व करना है, ठीक है। हुण वो किवें करना है देखो 1, ठीक है, उस तो बाद आ गया 0 -14, तो मेरे को -14 ही आ जाएगा, ठीक है। नैक्सट अगर मैं गल करा तो इस तो बाद देखो मेरे को क्या -6 और 0 -21, मतलब मेरे को आ जाएगा -21 ही तो आ जाएगा, ठीक है। नैक्सट अगर गल करिए -3 और मेरे को है 4 -0, मतलब मेरे को आ जाएगा ओनली 4। इन्हों दोनों की आपस की होएगी मल्टीप्लाई, -14 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे -14, इत्थे दोनों प्लस माइनस होने करके प्लस हो जाएंगे, इन्हों की मल्टीप्लाई करांगे तो 126 आ जाएगा और -12, ठीक है। तो यह एक पूरी की पूरी चीज़ है जी कि आप देख पा रहे हैं। हुण इन्हों सॉल्व करना है, इन्हों दोनों की एडिशन करके इस दे विचों माइनस हो जाएगा, तो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है जो आप ईजीली कर सकते हैं। तो बिल्कुल इत्थे मैथड समझने की जरूरत है कि आप 3/3 की जो डिटर्मिनेंट है वो किस तरीके नाल निकालना है। हुण फॉर एग्जाम्पल मैं कोई अनदर एग्जाम्पल ले ला जिहदे विच मैंने फस्ट सी नाल जां फिर आप गल कह दें R2 नाल जां किसी होर मैट्रिक्स नाल जां किसी होर कॉलम नाल आप कह सकते हैं कि कॉलम के मैथड नाल आप डिटर्मिनेंट किवें कर सकते हैं वो देख लैंदे हैं। जिवें फॉर एग्जाम्पल मेरे को इत्थे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जिवें 1 1 2 1, ठीक है जी। उस तो बाद आ जाता है 2 5 6 3 0 7, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। हुण लेट कर लो जो मैंने डिटर्मिनेंट निकालना है और डिटर्मिनेंट किस दे नाल निकालना है, और मैंने निकालना है C2 दे नाल, ठीक है, मतलब सैकेंड कॉलम दे नाल। सैकेंड कॉलम मेरे को की होएगा ए होएगा। तो इस तरीके नाल तुसीं कोई भी जो तुहानूं सुटेबल लगती है, वैसे आप ज़्यादातर उही रो जो मैट्रिक्स लैंदे हुण जिवें फॉर एग्जाम्पल इत्थे मेरे को C3 कह लो या R2 कह लो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि उसदे विच एक 0 एलीमेंट आ गया तो उसदे विच एक पार्ट टू मैंने सॉल्व करने की लोड़ ही नहीं पेगी। तो उत्थे आप इस तरीके नाल देखते हैं कि जिहड़ा ज़्यादा ईजी लगता है मैथड जिहदे नाल ईजी कैलकुलेशन हो सकती है उहदे नाल आपां करांगे। तो उरे भी आप आप कह सकते हैं 3 नाल या फिर R2 नाल सॉल्व करांगे, ठीक है। तो रो वाला मैथड आप कर चुके हैं, हुण एक बारी कॉलम वाला कर लैंदे तो C3 नाल आप इसनूं सॉल्व करांगे। हुण C3 का मतलब की हो गया, मैंने इस कॉलम के नाल पूरा पूरा जो डिटर्मिनेंट है वो निकालना है, ठीक है। हुण अगर आप गल करिए तो बिल्कुल मैट्रिक्स देख लैंदे अपने कोल की होएगी, सिंबल्स देख लैंदे प्लस अल्टरनेट जो सिंबल्स होंदे ने अपने कोल होंदे ने, ठीक है जी। और इस दे विच जो सिंबल्स ने अपने ए वाले सिंबल्स नूं ध्यान च रखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हुण सब तो पहला तो मैंने की किया C3 के अकॉर्डिंग लिया। C3 के अकॉर्डिंग जो मेरे को फर्स्ट वन है वो मेरे को की है 3 है, ठीक है, 3 है। हुण 3 दे विच मैं की कर रही हूँ, रो नूं भी वैनिश कर देंगे और 3 वाली कॉलम नूं भी वैनिश कर देंगे, ठीक है। तो हुण मेरे को की आएगा 3 तो आएगा ही, ठीक है जी। हुण मेरे को 3 तो आएगा ही, तो 3 मेरे को की हो गया एलीमेंट हो गया मेरा। और हुण जस्ट बिकॉज मेरे को यही जो 2/2 की मैट्रिक्स रहेगी, 3 के अगे कोई भी सिंबल है जो चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने मेरे को ऑलरेडी की है प्लस है, तुसीं प्लस लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पैंदा उसके नाल, ठीक है। नैक्सट अगर गल करिए तो हुण इत्थे मेरे को की रहेगी 2/2 की मैट्रिक्स रहेगी। 2/2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करना तो बहुत ईजीली आता भी आपां नूं, ठीक है, कि 6 नूं किस तरीके नाल 6 2 12 -5 1 5, ठीक है जी। हुण अगर आप अगे गल करिए
12 माइनस 5। हुण अगे अगर आप गल करिए सैकेंड जो एलीमेंट है 0, 0 नूं जदों मैं लऊँगी, वैसे एक बारी लैके दिखा देने आप सोल्व करके, बट अगे तुसीं जदों फास्ट कैलकुलेशन करनी हुई तो तुसीं 0 वाले एलीमेंट नूं स्किप कर दिया करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करके सारा दोबारा 0 ही बन जाएगा, ठीक है। बट स्टिल एक बारी सोल्व करके देखते हैं। हुण जिवें 0 है तो 0 की अगर मैं गल करा तो 0 वाली रो तो 0 वाला कॉलम मैं दोनों ही की कर दूंगी, वैनिश कर दूंगी, तो मेरे को की आ जाएगा। देखो सब तो पहला 0 तो आएगा ही, और 0 किहदे नाल आएगा, नेगेटिव नाल आएगा। क्लीयर है, ठीक है। हुण 0 वाली रो भी गई, कॉलम भी गई, तो मेरे को किहड़ी मैट्रिक्स बन गई 1 2 1 6। हुण 6 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई की 6, 1 नूं 2 नाल करोगे 2। क्लीयर है ये चीज़। हुण अगर अपन अगे देखिए थर्ड वन, हुण थर्ड वन की है, थर्ड वन है 7, ठीक है। 7 के अगे की है पॉजिटिव, तो प्लस वाला 7 लैके चलांगे आप, क्योंकि 7 के अगे अपना भी कोई साइन नहीं है तो प्लस आएगा, ठीक है जी। हुण 7 की रो भी गई और कॉलम भी गई, तो मेरे को ये जो 2/2 की मैट्रिक्स है वो बच जाती है। तो वो देख लें, 5 नूं 1 नाल करांगे तो कितना आ जाएगा 5, माइनस 2 नूं 2 नाल करोगे तो कितना आ जाएगा 4। हुण जस्ट इसनूं सॉल्व करना है 3। हुण 12 दे विचों 5 गए तो कितना आएगा 7, ठीक है जी। नैक्सट अगर आप गल करिए, इसनूं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, इनू माइनस करके 4 आ जाएगा, 4 नूं 0 नाल मल्टीप्लाई करोगे उन्हें वापस की बन जाना है 0 ही बन जाना है। इसलिए मैं तुहानूं कह रही सी कि अगर 0 वाला कोई एलीमेंट आ जाता है जिहदे विच अपने को फर्स्ट एलीमेंट 0 है, ठीक है, तो उत्थे तुसीं उसनूं छड्ड भी सकते हो, क्योंकि 0 नाल मल्टीप्लाई करके वही सारी चीज़ की बन जानी है 0 बन जानी है। तो नैक्सट की अगर आप गल करिए तो अगे आ जाता है +7, ठीक है। 5 दे विचों 1 माइनस करोगे 4, तो इत्थे मेरे को की बन जाता है, ये चीज़ बन जाती है। तो जो तुम इन्हों का ऐड करोगे 28 तुहाडे कोल की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके नाल आपां जो डिटरमिनेंट है 3/3 मैट्रिक्स का उसनूं सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तुहानूं आना चाहिए। नैक्सट अगर आप गल करिए प्रॉपर्टीज़ की, देखो 1/1 का डिटरमिनेंट हुंदा की है, निकालना किवें वो देख लिया आपां। हुण थोड़ा जिहा प्रॉपर्टीज़ वाल मूव करते हैं कि किहड़ियां प्रॉपर्टीज़ हुंदियां ने। सब तो पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है जी, अगर मैं रो नूं चेंज करदा कॉलम दे विच और कॉलम नूं चेंज करदा रो दे विच, फॉर एग्जाम्पल जिन्हों आपां मैट्रिक्स दे विच की बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म दे विच ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है। तो इत्थे की फॉर एग्जाम्पल मेरे को इत्थे कोई भी मैट्रिक्स है जो आपां हुणी लई सी उही ले लैंदे जिवें 1 2 1, ठीक है जी, 2 5 6 3 0 7। एक तरीके नाल सिंपल भाषा दे विच इसदा मैंने ट्रांसपोज करता, रो नूं कॉलम बनाता, कॉलम नूं रो बनाता। ये मेरे को फर्स्ट रो सी, इसनूं मैंने फर्स्ट कॉलम बनाता। ये मेरे को सैकेंड रो सी, इसनूं मैंने सैकेंड कॉलम बनाता। और ये मेरे को की सी थर्ड रो सी, इनू मैंने थर्ड रो बनाता। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट करा और अगर इसका डिटरमिनेंट करा, दोनों ऑलवेज की आएंगे जी, सेम आएंगे, कोई फर्क नहीं पैंदा। किहदे विच कह रही हाँ मैं, ये डिटरमिनेंट दे विच कह रही हाँ। इस गल का पूरा पूरा ध्यान रखियो। हुण जिवें इसका डिटरमिनेंट कितना आया सी, जिन्ना भी आया सी लाइक 28 आया सी, जेकर तुसीं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी करोगे तो वह भी कितना आएगा 28 ही आएगा। सो कोई भी फर्क है जो इस दे विच नहीं पएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों की जो वैल्यू है वह की रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है जी, वो वैल्यू की रहेगी, सेम रहेगी। तो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान च रखियो। रो कॉलम नूं जो कॉलम रो एक दूजे नाल इंटरचेंज करना, तो उहदे लई आपां पहली गल तो सिंबल किहड़ा चूज करते हैं कि मैंने रो ते कॉलम नूं इंटरचेंज करता, तो इस तरीके नाल उसनूं रिप्रजेंट किया जाता है। क्लीयर, जो कि मैंने इत्थे पूरा क्लीयरली लिखा भी है, ठीक है। नैक्सट अगर आप गल करिए सैकेंड प्रॉपर्टी की, तो सैकेंड प्रॉपर्टी देख लैंदे हैं। सैकेंड प्रॉपर्टी किहड़ी है अपने कोले, सैकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है जी, अगर मैं रो नूं, हुण इत्थे तां मैं गल कीती सी कि रो ते कॉलम नूं, ठीक है, अगर मैं रो नूं कॉलम नाल इंटरचेंज करदी हाँ, जब मैट्रिक्स की भाषा दे विच कहिए तां ट्रांसपोज करदी हाँ। बट अगर मैं किसी रो नूं किसी दूसरी रो दे नाल ही इंटरचेंज करदा, ਜਾਂ फिर किसी कॉलम नूं किसी दूसरे कॉलम नाल ही इंटरचेंज करदा, तां की होएगा बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी बट नेगेटिव आएगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब की है, उरे आप एग्जाम्पल लेके देख लेने हैं। अगर मैं दो रो नूं, ठीक है, जां दो कॉलम्स नूं, हुण कॉलम्स कोई भी हो सकदियां ने, 1/3 भी हो सकदियां ने, ठीक है, कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स नूं इंटरचेंज कर रही हाँ, तो मेरे को डिटरमिनेंट सेम आएगा बट दूसरे का डिटरमिनेंट दे बस अगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इत्थे जिवें आपां लई सी 1 2 1, ठीक है जी, 2 5 6 3 0 7 ये एग्जाम्पल लई सी आपां। अगर मैं करा कि मैंने की किया, इन्हां दोनों नूं इंटरचेंज करता, ठीक है, मैंने इदा क्वेश्चन सही नहीं लग रहा सी, पर जब मैं इंटरचेंज करता तो मैंने क्वेश्चन ईजी लगन लग जाता है। तो अगर मैं इंटरचेंज करदा तो मेरे को की बन जाएगी, मैट्रिक्स की बनेगी मेरे को
2 5 6 पहला आ जाएगा, 1 2 1 बाद विच आ जाएगा, 3 0 7 और फर्क मेरे को की आ जाऊगा जी, फर्क मेरे को आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट जो भी आऊगा वो इस डिटरमिनेंट दे की आऊगा नैगेटिव दे विच आऊगा। फॉर एग्जांपल इसका जो आंसर आया सी वो कितना आया सी 28 आया सी ना, इसका आंसर की आया सी 28 आया सी ना, तो इसका आंसर की आएगा -28 आएगा, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल बट स्टिल आप ये कह सकते कि नैगेटिव दे विच आऊगा। तो अगर इसका आप रो तो कॉलम्स नूं आपस दे विच इंटरचेंज कर रहे हैं, रोज़ नूं रो नाल, एक गल का ध्यान रखियो इस दे विच आपां जो दो सेम की गल कर रहे हैं ना, या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर रो नूं चेंज कर रहे हैं तो रो नाल ही चेंज होएगी, कॉलम नाल ही इंटरचेंज होएगी। ऐदा नहीं है कि तुसीं एक रो ले ली एक कॉलम ले लिया उसनूं इंटरचेंज करता, दिस इज़ नॉट पॉसीबल, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो अगर मैं ट्रांसपोज पिछली प्रॉपर्टीज़ दे विच कीता सी सारिया रोज़ नूं चेंज किया सी, एक तरीके नाल पूरा का पूरा ट्रांसपोज ही करता सी आपां, ठीक है। बट इत्थे तुसीं देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर रो नूं मैं चेंज कर रही हूँ दूसरी रो दे नाल इंटरचेंज कर रही हूँ, तो उत्थे रो नूं रो नाल ही इंटरचेंज होएगा, कॉलम नूं कॉलम नाल ही इंटरचेंज होएगा। आपां रो नूं कॉलम च कॉलम नूं रो नाल इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्लीयर। और किहदे विच आएगा नैगेटिव दे विच आएगा, ठीक है। नैक्सट अगर आप गल करिए थर्ड प्रॉपर्टी की, तो थर्ड वाल पहुँच जाने हम। थर्ड प्रॉपर्टी अपने को की कहती है कि फस्ट तो आपको ये भी पता लगता है कि जो आप ट्रांसपोज कर देने तो बिल्कुल उस आप प्रॉपर्टी में भी यही की भी सी, ठीक है। अगर नहीं की तो हम माइंड के बिठा लो कि अगर ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करो या फिर जस्ट सीधा ही डिटरमिनेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पैंदा, ये आपस के होंगे इक्वल होंगे। नैक्सट अगर आप गल करिए अगली प्रॉपर्टी की, अगर फॉर एग्जाम्पल हुण इत्थे मैंने लई सी अगर कोई भी दो मेरे को रो या फिर कोई भी दो कॉलम्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो जांदियां ने, कोई भी दो रोज़ या फिर कॉलम्स आइडेंटिकल हो जांदियां ने। हुण आइडेंटिकल दा इत्थे की मतलब है बिल्कुल सेम हो जांदियां ने, आइडेंटिकल ने, दैन उन्हां दी जो डिटरमिनेंट होएगा वो की होएगा 0 होएगा। हुण इसका मेरे तो की मतलब है, जो आप एग्जाम्पल लै रहे सी जिवें कोई भी लै लो तुसीं ABC दी फॉर्म च छड्डो 1 2 3 1 2 3 0 1 2, ठीक है। हुण इत्थे एक चीज़ मैनूं बिल्कुल क्लीयर नज़र आ रही है कि ए वाली रो और ए वाली रो आपस दे विच बिल्कुल सेम ने। सेम तो मेरा मतलब की हो गया आइडेंटिकल हो गया, ठीक है। हुण सेम ने तो इत्थे जो इन्हां दा डिटरमिनेंट है उसनूं सॉल्व करन दी लोड़ नहीं है, उसनूं आपां इन्ना सारा इवैल्यूएट करांगे, लोड़ ही नहीं है, डायरैक्ट लिख दो कि उसका आंसर की होगा 0 होगा, चाहे तुसीं सॉल्व करके चैक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर सिमिलरली तुहाडे कोल कोई भी दो कॉलम्स कितनी आपां उरे कोई भी दो रो सेम ने, जिवें फॉर एग्जाम्पल इदां, ठीक है, या फिर मेरे माइंड च होर क्वेश्चन आया जिवें मेरे को इस तरीके नाल है, ठीक है, इस तरीके नाल है मेरे को क्वेश्चन, ठीक है। हुण इसनूं मैं की कर सकदी हां, मैनूं एक गल क्लीयर नज़र आ रही है कि जेकर मैं इहदे विचों 2 नूं कॉमन निकाल ਲਾਂ तो मेरे को किहड़ी मैट्रिक्स बन जाती है 1 2 3 1 2 3 4 5 6, क्लीयर है ये चीज़, ठीक है। यह अगली प्रॉपर्टी बन जाती है जिसनूं आप प्रॉपर्टी नंबर 4 भी कह रहे हैं। उम्मीद है पहले तो ये चीज़ क्लीयर हो गई होगी कि अगर कोई भी दो रो भी हो सकती हैं, कोई भी दो कॉलम भी हो सकती हैं, सेम आती है तो सीधा लिख दो कि डिटरमिनेंट 0 है। अगली प्रॉपर्टी यही है कि फॉर एग्जाम्पल कि 2 4 6 है मेरे को, अगले दे विच है 1 2 3। हुण मैनूं पता लग गया कि जेकर मैं फस्ट दे विचों 2 नूं कॉमन निकालना तो मेरे को की बन जाएगियां बिल्कुल सेम बन जाएगियां। अगर सेम बन गया तो मैं हुणी जी प्रॉपर्टी की सी उहदे अकॉर्डिंग तो इन्हां दा जो डिटरमिनेंट है वो की आएगा 0 आएगा। मतलब की हो गया अगर कोई चीज़ दे विच कॉमन निकाल के मतलब ये हो गया कि आइडेंटिकल ने, ठीक, आइडेंटिकल भी नहीं बोल सकते, आप कह सकते मल्टीपल ने एक दूसरे दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इत्थे मेरे को कोई मैट्रिक्स है जिवें इहनूं मैं के लिख रही हाँ, ठीक है, स्कैलर है, आप कॉमन भी निकाल सकते हैं और उसनूं आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उत्थे आप ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर इस तरीके नाल आंदियां ने दो मैट्रिसेस तो वो आपस दे विच की होणगियां इक्वल होणगियां और 0 हो जाएगा अगर दो रोज़ या दो कॉलम्स की होंदियां ने इक्वल होंदियां ने, ठीक है। हुण फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे की कह सकती हाँ कि एक होर प्रॉपर्टी मेरे माइंड दे विच आ गई कि स्कैलर नूं अगर मैंने एक मैट्रिक्स दे विच मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हुण मैंने स्कैलर नूं एक मैट्रिक्स दे विच मल्टीप्लाई करना है तो मैं किसी भी एक रो दे नाल, ठीक है, या फिर किसी भी एक कॉलम दे नाल मल्टीप्लाई करूँगी, ना कि सारी दे सारे डिटरमिनेंट नाल।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਲਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਮਨ ਵੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਕੈਲਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, 1k 4k, ठीक है जी, 7k, और जो बाकी ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, तो इस तरीके नाल किसी पर्टिकुलर रो नाल होएगी या कॉलम नाल होएगी, और कॉमन भी बिल्कुल इस तरीके नाल एक रो या एक कॉलम दे विचों ही निकालिया जाएगा जिवें कि आपां फोर्थ प्रॉपर्टी दे विच कीता। ठीक है, नैक्सट अगर आपां गल करिए सिक्स प्रॉपर्टी दी, तो सिक्स प्रॉपर्टी मेरे कोल की आ जाती है कि जदों दो प्रपोर्शन हो जाती है, हुण जिवें यही सॉरी ये तो आपां कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रपोर्शन हो जाती है। प्रपोर्शन का मतलब यह हुंदा कि इन्हां दोनों की रेशो, इन्हां दोनों की रेशो और इन्हां दोनों की रेशो, वही चीज़ आ गई कि 2 नूं कॉमन निकाल लिया तो सेम बन गया और आइडेंटिकल का डिटरमिनेंट की हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सिक्स जो प्रॉपर्टी आप कर रहे सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस रही सी कि अगर दो मैट्रिसेस ने, ठीक है सॉरी, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे को इदा है 2 + x, ठीक है 2 + x 4 + y और 6 + z। ठीक है, इतने कोई भी एलिमेंट्स ले लो लाइक 7 4 3 1 2 5। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स नूं मैं किस तरीके नाल ब्रेक कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स नूं मैं किवें ब्रेक कर सकती हूँ, तो सब तो पहला तो मैं एक मैट्रिक्स लिखूँगी जिहदे विच मेरे कोल की होएगा, जस्ट मैं फर्स्ट वाले एलीमेंट्स नाल इस सारी मैट्रिक्स नूं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे कोल की बन जाएगा 2 4 6, ठीक है, प्लस बाकी दे जो एलीमेंट्स ने 7 4 3। ठीक है, उस तो बाद आ जाता जी अपने कोले 1 2 5। ठीक है, और प्लस दे विच मैं इसनूं किवें लिख सकती हाँ, x y z 7 4 3 1 2 5। तुसीं ये चीज़ समझ पा रहे हो कि किस तरीके नाल एक अगर एक रो दे विच जो एक कॉलम दे विच मेरे को दो एलीमेंट्स इस तरीके नाल प्लस के फॉर्म दे विच पाए ने, तो मैं इसनूं की कर सकती हाँ, ब्रेक कर सकती हाँ। और ब्रेक करके किवें लिख सकती हाँ कि कल्ले कल्ले एलीमेंट नाल दो अलग जो मैट्रिसेस ने उन्होंने लिखा जा सकता है। ठीक है जी, तो एक प्रॉपर्टी है जिहदे विच मैं कह सकती हाँ कि एलीमेंट्स नूं अगर एडिशन दे विच नहीं, एडिशन दे विच इदां नहीं है कि तुहाडे कोल एक मैट्रिक्स दे विच सॉरी एक डिटरमिनेंट दे विच जां फिर एक रो या कॉलम दे विच एक एलीमेंट पिया है एडिशन दे विच, बाकी नहीं हैगे। तुहाडे कोल सारे दे सारे उस रो दे एलीमेंट्स जां फिर सारे दे सारे उस कॉलम दे एलीमेंट्स ने जो कि होने चाहिए ने जी एडिशन दे विच होने चाहिए ने, तां ही उसनूं तुसीं ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, नैक्सट अगर आपां गल करिए विच प्रॉपर्टीज इज सिक्स्थ सैवंथ देखते हैं कि आप बहुत सारे रो या कॉलम के ऑपरेशनस लगा सकते हैं। रो कॉलम प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। ओवरऑल देखो कितनी प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने, 6 प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने, एडिशन सबट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई मैट्रिक्स है, मैनू मैट्रिक्स के विच मैनू लग रहा है जेकर मैं R1 के चेंज करदा R1 + R2 करदा, मतलब फॉर एग्जांपल इत्थे मेरे को कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिवें यही ले लेने जी आप कर रहे सी 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हुण मैनू इत्थे एक चीज़ लग रही है, मैंने इत्थे थोड़ा सोचा कि अगर इन्हां दोनों का मैं माइनस करदा, ठीक है, जां फिर इन्हां दोनों का मैं माइनस करदा, इन्हां दोनों का मैं माइनस करदा, तो मेरे लिए जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं की करना चाहनी हाँ, मैं चाहनी हाँ कि जो इन्ने डिजिट ने इन्हों थोड़ा स्मॉल बना लिया जाए, मतलब मैं चाहनी हाँ R3 दे विच चेंज हो जाए और R3 नूं मैं माइनस करदा R2 दे नाल। तो मैं की करूँगी, फर्स्ट दे विच देखो कोई चेंज नहीं किया, मैं एज इट इज़ पई है, सैकेंड दे विच भी कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज़ है, बट मैंने थर्ड दे विच चेंज किया। थर्ड दे विच मैंने की चेंज किया है, थर्ड दे विचों सैकेंड नूं माइनस करता। हुण इसका की मतलब है, 7 दे विचों 4 नूं माइनस करता मतलब 3, 8 दे विचों 5 नूं माइनस करता मतलब 3, 9 दे विचों 6 नूं माइनस करता मतलब 3। आप प्रॉपर तुहानूं समझ आ रहा है कि इत्थे की कीता गया, इत्थे एक ऑपरेशन कह सकते हो तुसीं लगाया गया, जो प्रॉपर्टी कह सकते हो तुसीं लगाई गई है कि मैंने कैलकुलेशन ईजी करने लई थोड़ा जा रोज़ नूं रो नाल जां फिर कॉलम नूं कॉलम नाल, बट इत्थे ध्यान रखियो रो दे नाल रो ही होनी चाहिए है और कॉलम दे नाल की होना चाहिए जी, कॉलम ही होनी चाहिए है।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ मैंने ए वाली प्रॉपर्टी लगाई तो मेरे को ए मैट्रिक्स बन गई, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ मैं इसका डिटरमिनेंट निकाला और जेकर मैं इसका डिटरमिनेंट निकाला, दोनों की आएंगे सेम आएंगे, किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पऊगा आंसर दे विच। तुसी चाहो तो इन्हों सॉल्व करके चेक कर सकते हो। लैट मैनू नहीं पता इसका आंसर कितना आ रहा, जस्ट लैट इसका आंसर 15 है तो इसका भी आंसर 15 ही होएगा, कोई भी फर्क नहीं पेगा। बाकी तुसी निकाल के चेक करो कि कितना इसका आंसर आ रहा और दोनों इक्वल आते नहीं या नहीं। इस तरीके नाल जेकर तुसी कोई कॉलम वाला भी ऑपरेशन लगाने हो, कॉलम 1 दे विच चेंज करते हो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो वो सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। और किन्ने होंदे हैं ओवरऑल ऑपरेशंस 6 होंदे हैं। नैक्सट अगर गल करिए 8th प्रॉपर्टी, 8th मे बी, हाँ जी 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी की अगर आप गल करिए तो अगर मेरे को कोई भी एक कॉलम या एक रो 0 हो जाता है तो उत्थे मेरे को जो डिटरमिनेंट है वो की हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डजन मैटर वो रो है, डजन मैटर वो कॉलम है। अगर एक पूरी रो या अगर एक पूरी कॉलम कोई भी फर्स्ट सैकेंड थर्ड कोई भी 0 हो जाती है तो वो मेरे को की बन जाता है, वैनिश हो जाता है। वैनिश मतलब उसका पूरे का जो डिटरमिनेंट है उन्हें की आ जाना है, 0 आ जाना है। क्लीयर। नैक्सट अगर आप गल करिए इस तो अगली जो प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि हाँ जी बस ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी सीगियां जिन्हां नाल आपां देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट का काफ़ी कुछ आपां नूं सीखण नूं मिलता है कि डिटरमिनेंट दे विच आपां ऑपरेशनस लगा सकते हैं। ठीक है। होर अगर आपां गल करिए रो कॉलम नूं आपस विच इंटरचेंज कर सकते हैं, एडिशन है या सबट्रैक्शन है उसनूं ब्रेक करके लिखा जा सकता है। ठीक है। स्कैलर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कल्ले ना एक रो या कल्ली एक कॉलम नाल होएगा, नॉट हर एक एलीमेंट नाल नहीं होएगा। ठीक है। तो इदां दी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ने जो आपां देखियां ने किहदे विच डिटरमिनेंट दे विच इंपॉर्टेंट सीगा। नैक्सट अगर आप गल करिए कुछ रिजल्ट्स ने, वैसे तो +2 दे विच 4th चैप्टर है। ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप गल करिए सेम बहुत सारा सॉल्वेशन उदों आप किया +2 क्लास दे विच। अगर कुछ पर्टिकुलर जी चीज़ां ने जो तुसीं याद रखना चाहते हो, ठीक है, तो वो जिवें फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज़ हुण जिवें इत्थे आपां नूं कह दिता जाए क्वेश्चन आ जाए आपां नूं कोई भी 1 1 1 A B C, ठीक है जी, इत्थे आ जाए B+C C+A और A+B और पूछ लिया जाए नीचे 4 ऑप्शनस होन कि इसकी की वैल्यू होएगी 0 1 2 3 या ए बी की फॉर्म कोई भी 4 ऑप्शनस आ जान तो इसका की आंसर होएगा। ठीक है। हुण इत्थे मैनूं एक चीज़ क्लीयर हो रही है, मैंने प्रॉपर्टीज़ चंगी तरह पता ने। अगर कोई एक कोई भी रो या कॉलम है जो वैनिश हो जाए या फिर 0 0 0 मेरे कहने का मतलब तो वो की बन जाएगी, 0 बन जाएगी। या फिर अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम्स सेम हो जान तो वह भी की बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है। तो इतने मेरे माइंड के सारिया प्रॉपर्टीज़ हैगियां ने और मैनू ये भी पता है कि मैं ऑपरेशनस भी लगा सकती हाँ। ठीक है। हुण ऑपरेशन किस तरीके नाल लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने R3 दे विच चेंज किया, C3 दे विच चेंज किया C3 + C2। हुण इत्थे मैंने की चेंज किया, मैंने चेंज किया कि मैंने C3 दे विच चेंज करना है और इन्हों दोनों का ऐड करना है क्योंकि यह कॉलम 3rd है, एक कॉलम 2nd है। ठीक है। C3 दे विच चेंज किया C3 + C2 तो हुण देखो किहड़ी मैट्रिक्स बनती है अपने कोले 1 1 1। ठीक है जी। इत्थे मैंने कोई चेंज नहीं किया, पहले 2 दे विच मैनूं कोई मतलब नहीं है, सेम ही रहेगा। मैंने C3 दे विच चेंज किया, 3rd दे विच भी मैंने की चेंज किया, इन्हों दोनों का ऐड। फर्स्ट कॉलम दे 3rd कॉलम के फर्स्ट एलीमेंट का और 2nd कॉलम के फर्स्ट एलीमेंट का ऐड। ठीक है। तो हुण इन्हां दा ऐड कर दिया तो मेरे को की बन जाता है A + B + C। इसनों इसदे विच ऐड करूँगी तो भी मेरे को की बन जाएगा A + B + C, कोई फर्क नहीं पैंदा, अगे पिछे तुसीं लिख सकते हो। ठीक है। इस तो बाद अगर इसदे विच इसनों ऐड कर दिए तो भी मेरे को की बन जाता है A + B + C। हुण मैनूं ये भी याद है कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम दे विच बिल्कुल सेम सब कुछ होवे तो उस दे विच मैं ईजीली कॉमन निकाल सकती हाँ। हुण इत्थे मैनूं साफ नज़र आ रहा है कि इत्थे मेरे को A + B + C तिन्नां दे विच है, तो मतलब मैं इसनूं कॉमन निकाल सकती हाँ, A + B + C नूं कॉमन निकाल सकती हाँ मैं। ठीक है। तो इत्थे मेरे को कुछ नहीं चेंज किया, मैंने फर्स्ट दे विच और 2nd दे विच मैंने कुछ नहीं चेंज किया तो यह मेरे को एज इट इज़ आ जाएंगे। बट ये मैंने आ पूरी दी पूरी दे विचों A + B + C A + B + C A + B + C कॉमन निकाल लिया। जो मैंने वही चीज़ कॉमन निकाली तो मेरे को की बन गया सेम मैट्रिक्स 1 1 1 बन गई।
और अगर 1 1 1 बन गई तो दो सेम बन गया कॉलम्स, ठीक है। अगर दो कॉलम सेम हो तो मतलब वो की होएगा 0 होएगा, तो मतलब अपने कोल की होएगा आंसर 0 होएगा। ये तो सीगा सॉल्व करन दा पूरा मैथड, ठीक है। बट जेकर तुसी क्वेश्चन नू इत्थे ही देख लैंदे हो कि इत्थे की मिल रहा आपां नू, इत्थे देखण तो ही क्लीयर हो रहा है कि जो मैट्रिक्स है जेकर मैं इन्हां दोनों का ऐड करके बाहर करदा तो इत्थे मेरे को की बन जाएगा 1 1 1 बन जाएगा और दोनों सेम हो जाएंगे तो मेरे को आंसर कितना आ जाएगा 0। अगर थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट है, थोड़ा बेस स्ट्रोंग है, तो तुम बड़ी ईजीली इन्होंने अपने मन के विच ही सॉल्व करके आंसर है जो कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चन ने वो बन जाते हैं, कुछ रिजल्ट ने, ठीक है, वो आप देख लें जिन्होंने आप एज इट इज़ याद रख सकते हैं सॉल्वेशन करने की बजाय। जिवें फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर आ जाता है, सॉरी 1 1 1, ठीक है जी, ए बी सी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो इस चीज़ नू मैं एग्जैक्ट याद रख सकती हाँ कि मेरे को की बनेगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। क्लीयर। अगर मेरे को नैक्सट बन जाता है सेकेंड रिजल्ट आप बोल सकते हैं 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इसनों मैं एग्जैक्ट याद रख सकती हाँ कि ये मेरे को की बनेगा ए माइनस बी, ठीक है जी, बी माइनस सी माइनस ए, और इसके नाल ही तिना दी एडिशन ए प्लस बी 1 मिनट प्लस सी, ठीक है। अगे अगर आप गल करिए थर्ड की, तो थर्ड दे विच मैं की कह सकती हाँ कि थर्ड दे विच मेरे को की रिजल्ट है। हुण उत्थे अगर आप देखिए तो इत्थे मेरे को फॉर एग्जाम्पल ए मेरे को मैट्रिक्स है 1 डिटर्मिनेंट है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इसनों मैं किस तरीके नाल लिख सकती हाँ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है जी, और ए बी सी ए। तो ये रिजल्ट्स ने जो तुसी एग्जैक्ट याद रख सकते हो अपने माइंड दे विच। अगर आ जाता है फोर्थ और लास्ट वन लगा लो, या फिर इदा दे बहुत सारे रिजल्ट होंगे ने, बहुत सारे होंगे ने, ठीक है। तो जिन्हें अगर थानू कैलकुलेशन करनी आती है जो तुसी ईजीली उन्होंने सॉल्व कर सकते हो तो ज़्यादा चंगी गल है। बट कुछ इंपॉर्टेंट जो तुसी लिख सकते हो, ठीक है, जिमें ए बी सी है बी सी ए, ठीक है, या फिर सी ए बी, इनू आप लिख सकते हैं ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 3 ए बी सी, ठीक है। तो इस तरीके नाल इसनू की नैगेटिव दे विच आएगा ये, तो मूरे सिंबल जो है वो माइनस का है, ठीक है। तो इन्होंने आप एग्जैक्ट याद रख सकते हाँ, ठीक है। और जो फर्स्ट वन करवाया सी वो एक होर ये मैं थोड़ा दसना चाहूँगी कि फॉर एग्जाम्पल थोड़े को इतने नेगेटिव दे विच ने है ना, या फिर 1 1 1 है, तो कोशिश कराया करो जिमें हम थोड़ा ये रिजल्ट नहीं याद, मैनू नहीं याद कि किस तरीके नाल एग्जाम के क्वेश्चन आ गया, तो तुसी उत्थे अगर सॉल्व करन बैठोगे तो किवें करोगे। तो जिथे थोड़ा तिन्ने 1 1 मिल गए ना, उत्थे कोशिश कराया करो कि किन्ना 2 नूं 0 बना लिया जाए, और जिन्ना कुछ कॉमन निकलता उन्ना कुछ कॉमन निकाल लिया जाए। एंड ते जाके जो थोड़े को ये दोनों 0 बन गए और सिर्फ एक 1 रह गया, तो इसके अकॉर्डिंग की कर दिता जाए एक्सपैंड का मतलब डिटर्मिनेंट कर दिता जाए। खैर इन्ना लेंथी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। तो तुम इन्होंने रिजल्ट्स में याद रखो तो ज़्यादा बैटर है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ऑलवेज। नैक्सट अगर आप गल करिए तो हुण अगर आपने डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स के आप देखा कि अगर डेरीवेटिव निकालना है तो कल्ले कल्ले एक एलीमेंट का आप करते थे डेरीवेटिव करते थे। हुण अगर आप डिटर्मिनेंट के देखना है कि उसका डेरीवेटिव किवें निकालांगे तो वो किवें करांगे आप। हुण फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई भी ए मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ए डिटर्मिनेंट है सॉरी, तो उसको रिप्रजेंट भी एवें किया जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट है कोई भी 2/2 का लै लो, जिवें मैंने ले लिया 2x, ठीक है जी, स्क्वायर ले लो, इत्थे x ले लो, साइन या फिर इतने एक कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके नाल मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया। हुण मैंने की करना है इसका डेरीवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है इसनूं, ठीक है। ये मेरे को एक तरीके नाल एक फंक्शन है, ठीक है, या फिर तो इसका अगर डिफरेंशिएट करना है तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर रो का या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम का निकाल के उन्हों का ऐड कर दूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला फर्स्ट रो का निकालूंगी, ठीक है, फर्स्ट डेरीवेटिव करूँगी मैं विद रिस्पैक्ट टू एक्स फर्स्ट रो का, और उस तो बाद मैं सेकेंड कॉलम का निकालूंगी विद रिस्पैक्ट टू एक्स, और दोनों का की हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। हुण जिवें मैं फर्स्ट कॉलम का अगर मैं कहाँ डेरीवेटिव होएगा तो मेरे को की होएगा, मेरे को आएगा 2x स्क्वायर का कितना बन जाएगा 4x बन जाएगा, ठीक है।
2x स्क्वायर का कितना बन जाएगा 4x, साइन का कितना बन जाएगा जी cos x। ठीक है, हुण सैकेंड दे विच मैंने कुछ नहीं किया, सैकेंड मेरे को की आ जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा प्लस। ठीक है, हुण इत्थे मैं फर्स्ट दे विच कोई चेंज नहीं किया, जिवें आपां मल्टीप्लाई दा प्रॉपर्टी लगाने ना डेरीवेटिव दे विच बिल्कुल वही चीज़ है। सैकेंड दा डेरीवेटिव x दा डेरीवेटिव करोगे 1, 1 दा डेरीवेटिव करोगे 0। ठीक है, हुण तुसीं इसका डिटरमिनेंट निकालो, ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट निकालो और सारिਆਂ ਦਾ की कर दो ऐड कर दो, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके नाल आपां डिफरेंशिएट करते ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ की कहते हैं उन्होंने डिटरमिनेंट दे विच। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन की गल करिए तो इंटीग्रेशन दे विच देखो इत्थे कितना तो किते ना किते आप दोनों रो का जो दोनों कॉलम है ना, अगर कॉलम वाइज करते तो दोनों कॉलम्स का करके ऐड कर देंगे, अगर हुण रो वाइज किया तो दोनों रोज़ का करके ऐड कर दिता। बट अगर आप गल करिए इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन किसी एक पर्टिकुलर रो का, ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की इंटीग्रेशन कर दो तो पूरे के पूरे जो डिटरमिनेंट है उसकी जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे को यही जो आप ले लेने x1 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर ते sin x। ठीक है, हुण इन्होंने किया ये मेरे को की है ये मैट्रिक्स है, मैंने की करनी है ये मेरे को कोई भी फंक्शन भी लगा ला सकते हो तुसी कि मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन किस तरीके नाल होएगी, किसी भी एक पर्टिकुलर रो की इंटीग्रेशन कर दो। मतलब की है मेरे कहने का, इंटीग्रेशन x की करांगे तो x स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, 1 की करांगे तो x आ जाएगा 2x स्क्वायर sin x। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की इंटीग्रेशन कर दो तो डिटरमिनेंट है जो सोल्व हो जाएगा। हुण इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, जो आंसर आएगा डिटरमिनेंट मतलब वही क्रॉस प्रोडक्ट करके माइनस जो आंसर आएगा वो तुहाडा की होएगा आंसर होएगा। उम्मीद है चीज़ क्लीयर हो गई होएगी। वैसे डिफरेंशिएशन ते इंटीग्रेशन दे विचों इन्ना कुछ बनता नहीं है, जस्ट एक बार अपने माइंड दे विच रखो। ठीक है, नैक्सट अगर आप गल करिए एप्लीकेशन, देखो जो डिटरमिनेंट है वो तो सिलेबस के विच पूरा पूरा लिखा हुआ है कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है विद दी हैल्प ऑफ डिटरमिनेंट तो तुसीं उसनूं किवें करोगे। ठीक है, तो इसनूं देख लैने आपां कि अगर एरिया फाइंड करना है, हुण आपां नूं कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल के की होंदे हैं 3 पॉइंट्स होंदे हैं। ठीक है जी, ट्रायंगल के की होंदे 3 पॉइंट्स होंदे हैं। फर्स्ट पॉइंट लै लो x1 y1 होंदा, सैकेंड पॉइंट की होंदा x2 y2। ठीक है, थर्ड पॉइंट लैट कर लो कि x3 y3 होएगा। ठीक है, इस तरीके नाल 3 पॉइंट्स होंदे ने। तो इन्हां तीनों पॉइंट्स अगर आपां नूं दित्ते होए ने तो आप बहुत ही ईजी तरीके नाल की कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं किहदा ट्रायंगल दा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विद दी हैल्प ऑफ डिटरमिनेंट किवें, हुण देखो अपने कोल की हुंदा है 1/2 डिटरमिनेंट। ठीक है जी, मेरे कोल की है x1 ना y1 x1। ठीक है, तो मेरे कोल की है पहले मैं x1 तो y1, ठीक है, या फिर बिल्कुल सिंपल x1 3 ले और उन्होंने एक कॉलम की फॉर्म के विच लिखिया, फिर अगे मैंने की लिखे y वाले पॉइंट्स लिखे और जो थर्ड सी उसनों मैंने 1 1 नाल लिखिया। जो मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगी और 1/2 नाल मल्टीप्लाई कर दूंगी और मेरे को की आ जाऊगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाऊगा। या फिर सिंपल शब्दों में कहिए दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लीयर है जी, तो एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं आप जेकर सिंपल है पॉइंट्स दिते होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम के एक्स वैल्यू आएगी, सैकेंड कॉलम के वाई वैल्यू आएगी, अगले देखा कि 1 1 1 होएगा तो आप ईजिली जो एरिया है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी पॉइंट्स देते थे, जिवें मैंने एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स गिवन ने 2 3 0 1 -1 0। ठीक है, तो मैनू क्या गया कि एरिया निकालो ट्रायंगल का। तो एरिया किवें निकालांगे, हुण मैनू पता है कि एक ट्रायंगल दे आ पॉइंट, ठीक है जी, आ पॉइंट तो आह 3 पॉइंट्स गिवन ने। ठीक है, तो सीधा मेरे को फॉर्मूला की बन जाता है फिर डिटरमिनेंट का 1/2 सब तो पहला x की वैल्यू, ठीक है, 0 -1 तीनों मैंने x दी वैल्यूज़ ले लिया, फिर उसके बाद 3 1 0 तीनों मैंने y दी वैल्यूज़ ले लिया और लास्ट मेरे को की आएगा 1 1 1। ठीक है, जो इसको सॉल्व करांगे तो मेरे को की बन जाता है 1/2। ठीक है, हुण इसका मैंने डिटरमिनेंट निकालना है। इसका डिटरमिनेंट मैं चाਹਾਂ तो बड़ी ईजिली निकाल सकती हाँ। ठीक है, हुण फॉर एग्जाम्पल सॉरी 1/2। ठीक है जी, इस तरीके नाल करांगे तो मेरे को पहला की आएगा 2 ×
1 माइनस 0 तो 1 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, 1 लिखो ना लिखो नहीं, 2 ना मल्टीप्लाई हो के 2 ही बन जाना। उस तो बाद बन जाता है 3। ठीक है, हुण इत्थे मेरे को जो सिंबल है वो माइनस का लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होंदा है। मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंड कर रही हूँ। ठीक है जी, तो हुण इत्थे जेकर मैं देखा 1 0 0 माइनस माइनस 1 1 1, हुण इत्थे मेरे को की बन गया 0 माइनस माइनस 1 बन गया। तो जेकर मैं इसनूं सॉल्व करा तो मेरे को की बन गया प्लस का 1 बन गया। हुण 3 नूं मैं 1 नाल मल्टीप्लाई करूँगी तो उन्हें वापस की बन जाना है 3 ही बन जाना है। तो इस तरीके नाल तुसीं अपनी कैलकुलेशन नूं बड़ी तेज़ी नाल चलाना है। ठीक है जी, नैक्सट अगर आपां गल करिए इस तो बाद देखो जो रह जाता है वो मेरे को की है, वो मेरे को है थर्ड कॉलम थर्ड रो। ठीक है, थर्ड कॉलम थर्ड रो, तो मेरे को इत्थे 1 दे नाल आएगा, तो मेरे को इत्थे की आएगा +1। ठीक है, अंदर मेरे को की आएगा 0 माइनस माइनस 1, तो 0 माइनस माइनस 1, इत्थे भी वही चीज़ बन जाती है 0 + 1, 0 + 1 करूँगी तो 1 ही आ जाएगा, 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को बन गया 1/2 माइनस 1 + 1 विच इज़ 0। हुण इत्थे जो मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना वो 0 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, ਜਦੋਂ किसी ट्रायंगल का एरिया, सब तो पहले तो ट्रायंगल का एरिया की होंदा है, ट्रायंगल का एरिया होंदा है कि वह कितनी जगह कवर कर रहा है। ठीक है, किसी ट्रायंगल के एरिए तो की मतलब होंदा है कि वह कितनी जगह कवर कर रहा है। हुण इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरा ट्रायंगल का एरिया वो 0 है, मतलब एक ट्रायंगल है जो उसके जो 3 पॉइंट ने वो की ने एक लाइन के उपर ने, क्योंकि यह कोई भी जगह ने जो वो कवर नहीं कर रहे। अगर मेरे को ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है तो यह मतलब वो की हो जाता है पॉइंट्स ने जो वो आपस के विच की ने कोलीनियर ने। तो इसनूं थोड़ा जिहा प्रैक्टिकल होकर सोचो कि किसी 3 पॉइंट्स ने, अगर 3 पॉइंट्स कोई भी जगह कवर नहीं कर रहे, कोई भी इन्हां दे विच एरिया नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब की हो गया ये तीनों सेम लाइन पर होणगे ਤਾਂ ही कोई जगह कवर नहीं हो रही ना। इन्ना कि तुसीं समझ पा रहे होंगे। अगर तीनों सेम लाइन पर हो गए तो मतलब वो की होगी कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब हुंदा है वो वाले पॉइंट जो एक ही लाइन के उपर हुंदे ने, उन्हां नूं आपां कोलीनियर बोलते हैं। क्लीयर इट इज़ और नॉट? ठीक है जी, उम्मीद है ये चीज़ क्लीयर हो गई होगी। तो इत्थों एक इंपोर्टेंट रिजल्ट निकल के आता अपने को, कि रिजल्ट निकल के आता है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल तुहाडे कोल 0 आ जाता है तो वो 3 पॉइंट्स की होंगे हैं कोलीनियर होंगे हैं। एवें दे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के विच। हुण किवें बनते हैं कि थानू पॉइंट्स दे दिते और क्या दिता कि चेक करो दीज आर कोलीनियर और नॉट। ठीक है, या फिर होर भी बहुत सारी चीज़ां होंदियां, मतलब उत्थे तुहाडे कोल इदां दे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन्हां चीज़ां नूं कल्ले कल्ले रिजल्ट नूं अपने माइंड दे विच रखो। ठीक है, तो ये सी अपने कोले पॉइंट। ठीक है, उस तो बाद देखो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट जो एक होर पॉइंट है तुहाडे सामने है, वो तुसीं देख पा रहे हो कि किहड़ा है लीनियर इक्वेशनस, जिसनों आपां क्रैमर रूल नाल सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन्ना क ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है कि हर बार ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तुसीं कोई भी मास्टर कैडर का एग्जाम उठा के देख लो, जो हुणी होया सी उहदे विच भी ये क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपां कह सकते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक है। हुण सब तो पहले तो लीनियर इक्वेशनस ने वो 2 होंदियां ने, नॉन होमोजीनियस तो होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस नूं आपां लीनियर इक्वेशन जां होमोजीनियस नूं वो देखते हैं। हुण जिवें मेरे को कोई भी, सब तो पहले तो आपां लीनियर इक्वेशनस नूं देख लैंदे हैं की चीज़ होंदी है। जिवें मेरे को कोई भी इक्वेशन है 3x + 4y, ठीक है, पहले 2/2 दी लैंदे हैं, = 2 4x + 1y = 5। ठीक है, तो ये मेरे को की ने जी लीनियर इक्वेशनस ने। ठीक है, लीनियर इक्वेशनस ने ये एक चीज़ तुसीं देखो, इसनूं मैं वैसे तो सिंपली सॉल्व कर सकती हाँ, एक्स दी वैल्यूज़ निकाल लो, वाई दी वैल्यूज़ निकाल लो, हो जाऊगा। ठीक है, पहला इनू डिटेल दे विच देखते हैं कि किस तरीके नाल इनू आपां कर सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल दे विच देखते हैं। उस तो बाद आपां मिनटां दे विच आंसर किवें निकाल सकते हैं कि फिनाइट ने इनफिनाइट ने, वो सारा कुछ करांगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसनूं देखते हैं। तो सब तो पहले आपां क्रैमर रूल समझ लैंदे कि क्रैमर रूल की हुंदा है। क्रैमर रूल हुंदा है x = d1/d। ठीक है जी, y = d2/d। हुण इत्थे d1 की है तो d2 की है। d1 देखो इत्थे की चीज़ है, पहले तो d देख लो, d का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट। हुण तुसीं इत्थे देखोगे तो मेरे को जो x के कोफिशिएंट्स ने तो जो y के कोफिशिएंट्स ने उन्होंने जेकर मैं उठा ला तो मेरे को एक मैट्रिक्स बन जाती है 3 4 4 1 3 4 4 1। दिस इज़ नोन एज d। मतलब की है इसका, मतलब जे मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना, मतलब जे मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो मेरे को जो वैल्यू आएगी उसनों मैं डी दे नाल रिप्रजेंट कर दी, मतलब डिटर्मिनेंट।
मतलब की हो गया 3 1 जा 3 माइनस 4 4 जा 16 और ये मेरे को आ गया -13। तो ये मेरे को की आया डी की वैल्यू है डी इज इक्वल टू -13। हुण ये तो सीगा मेरे को डी। गल हुई सी D1 के बारे भी, देखो तुसी देख पा रहे हो इत्थे D1 भी है, ठीक है। तो D1 का की मतलब हो जाता है, हुण D1 देखिए जेकर तो D1 दे विच D1 की जगह ते 1 की जगह ते फस्ट कॉलम की जगह ते मैं इसनों यूज़ करूँगी, ठीक है। फस्ट कॉलम की जगह ते इसनों यूज़ करूँगी का मतलब ये हो गया कि इत्थे जो मेरे को वैल्यूज़ ने वो चेंज हो जाएगियाँ, वो किहड़ियां आ जाएगियां 2 और 5। ये मेरे को होएगा D1। हुण इसका जो मैं डिटरमिनेंट निकाल रही हाँ तो मेरे को की बन जाता है 2 - 20 विच इज़ -18, ठीक है। तो मेरे को इत्थे डी की वैल्यू सी, ठीक है। तो D1 की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है -18 आई है, ठीक है। हुण अगे तुसीं देख रहे हो कि इत्थे मेरे को D2 भी है, तो D2 की है वो देख लैने। हुण D2 का मतलब ये हो गया कि मेरे को जो बाकी की मैट्रिक्स है, ठीक है, वो तो सेम ही रहेगी, जस्ट सैकेंड की जगह पर मैं इसनूं लगा लाँगी। तो वैसे मेरे को मैट्रिक्स की सी ए वाली सी ना, हुण मैं इत्थे की करूँगी सैकेंड कॉलम नूं चेंज करूँगी और सैकेंड कॉलम की जगह पर मेरे को की आ जाएगा 2 5, क्लीयर। तो ये मेरे को की बनूगा D2। हुण देखते हैं D2 कितना हुंदा। तो D2 नूं सॉल्व करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 - 8 विच इज़ 5 and 2 7, ठीक है जी। तो मेरे को D2 जो है वो कितना आ गया 7 आ गया। पहला तो उम्मीद है इन्नी की चीज़ थानू क्लीयर हो गई होएगी कि क्रैमर रूल के आप इसनूं सिंपली सॉल्व करके बड़ी आराम नाल एक्स वाई दी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। पर यह समझना भी जरूरी है भी क्रैमर रूल की है, ठीक है। क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, एवं नहीं बनते कि एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की, कि इन्होंने इक्वेशनस के फिनाइट सोल्यूशन है, इनफिनाइट सोल्यूशन है, ट्राइबल सोल्यूशन है, वो सारा कुछ बनता है। उन्होंने चीज़ों को समझने नहीं पहले ये समझो कि क्रैमर रूल हुंदा की है। हुण क्रैमर रूल आप समझ रहे हैं तो D2 है, ठीक है। हुण ये सारा कुछ आप देख लिया होगा कि D किस तरीके नाल निकालना है। हुण ये जो एक्स की वैल्यू है वो की हुंदी है D1/D, वाई की वैल्यू हुंदी है वो हुंदी है D2/D, ठीक है। इस तरीके नाल आप D D1 D2 निकाल सकते हैं। हुण जेकर मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं की करूँगी D1 के नाल D नूं डिवाइड कर देंगे, मतलब मेरे को एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी -18 y -13 दिस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और वाई की जो वैल्यू है वो मेरे को कितनी आ जाएगी 7 by -13। तो इस तरीके नाल मैं एक्स की वाई की वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल निकाल सक रही हूँ। ये तो मैंने वैसे क्वेश्चन निकाले से तां करके कुछ इस तरीके का आंसर आया, ठीक है। अगे समझते हैं। तो ये सी क्रैमर रूल, ठीक है। ये 3/3 का भी हो सकता है, उत्थे बस अपने को एक होर ऐड हो जाएगा Z, जिसनों आप लिख सकते हैं D3/D, क्लीयर है। हुण अगर आप गल करिए अगे थोड़ा जा कि सब तो पहली कंडीशन तो ये की हुंदी है, मैंने तुहानूं दस्सिया सी कि 2 होंदियां, ठीक है। क्रैमर रूल दे विच 2 चीज़ां आपां नूं देखण नूं मिलदियां, नॉन होमोजीनियस कह लो या लीनियर कह लो, ठीक है। एक हुंदी है होमोजीनियस, एक हुंदी है नॉन होमोजीनियस, ठीक है। हुण एक ही चीज़ हुंदी है होमोजीनियस नूं फिर देखांगे, पहला इस नूं चलदे हैं। ये विच की होना चाहिए डिटरमिनेंट जो है वह की होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि देखो आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो मेरे को की है D1/D है, मतलब जो नीचे वाली टर्म है वो 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो यह मेरे को की बन जूगा D1/0 बन जूगा विच इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मेरे को की होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। हुण इत्थे जरूरी थोड़ी है कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। हुण इत्थे जो डिटरमिनेंट है वो अगर आप गल करिए तो जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, दोनों केसिस हो सकते हैं इस दे विच। इस चीज़ को थोड़ा जिहा ध्यान दे विच सुनियो कि जो आप XYZ दी वैल्यूज़ निकालते हैं तो उन्हों का जो डिटरमिनेंट होंदा है, जिवें इस एक मिनट आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं D1/D, ठीक है। वाई की वैल्यू निकालते हैं D2/D, एक बार तुम समझ चुके हो कि किवें निकालते हैं। और Z की वैल्यू आप निकालते हैं D3/D, ठीक है। हुण मेरे को जो D है वह मेरे को नॉट इक्वल भी हो सकता है मेरे को D0 ना आवे, ठीक है। बट जो हो सकता है मेरे को D0 आ जाए, कितने भी नहीं लिखा कि नहीं आऊगा। तो दोनों केसिस दे विच किस तरीके नाल आपां इसनूं स्टडी करना है। जे तो मेरे को D नॉट इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है जी, अगर मेरे को D नॉट इक्वल टू 0 बन गया तो मैं ईजीली यह चीज़ कह सकती हूँ। हुण मेरे को D0 नहीं है तो मेरे को की बनता है इत्थे यूनीक सोल्यूशन बनता है।
यूनीक सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि इसकी पर्टिकुलर हुण जिवें मैंने एक्स की वैल्यू निकाली सी, मेरे को -18/-13 आई सी, वाई की मैंने वैल्यू निकाली सी, वो भी मेरे को 7/-13 आई सी। तो यह मेरे को एक यूनीक आंसर है। उस क्वेश्चन को कोई होर भी सॉल्व करेगा तो सेम ही आंसर आएगा, यूनीक वैल्यू होएगी एक्स की और वाई की। ठीक है, इत्थे यह चीज़ हो जाती है क्योंकि इत्थे डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं है। बट अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, किसी किसी केस के विच हो जाता है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इत्थे की बनता है, ठीक है, इसनों आपां ये भी बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होंदा है सोल्यूशन निकल गया, पॉसीबल है सोल्यूशन, तो यूनीक भी है। ठीक है, तो तुसीं कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो। अगर डी 0 हो गया, हुण डी 0 के अगे दो केसिस बनते हैं। इफ डी इज़ इक्वल टू 0 मतलब डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसके अगे दो केसिस बनते हैं। किहड़े केस बनते हैं कि जो D1 D2 D3 है वो भी 0 आ जाए, या फिर D1 D2 D3 0 ना आए। ठीक है, हुण ये किद्दां देखते हैं आपां, अगर मेरे को डी की वैल्यू लैट कर लो कि 0 आ गई, ठीक है जी, डी की वैल्यू अगर मेरे को 0 आ गई, D1 D2 D3, ठीक है, अगर इन्हों की वैल्यू 0 नहीं आई, लैट कर लो मेरे को D1 की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, किसी भी एक एटलीस्ट 1 की भी अगर 0 नहीं आती तो, ठीक है, तो अगर मेरे को लैट कर लो, बट मेरे को डी तो 0 है ना, तो की यह पॉसीबल है, इज़ इट पॉसीबल? ठीक है, यह पॉसीबल नहीं है। तो इत्थे मैं की कह सकती हाँ कि इस कंडीशन दे विच नो सोल्यूशन हो जाता है भी, ये तो पॉसीबल ही नहीं है, ये तो नॉन डिफाइंड हो गया, तो इत्थे की हो जाऊगा, नो सोल्यूशन हो जाऊगा। ठीक है, अगर बाय चांस मेरे को डी भी 0 आ गया, मैंने D1 निकालिया वो भी 0 आ गया, मैंने D2 निकालिया वो भी 0 आ गया, मैंने D3 निकालिया वो भी 0 आ गया, और डी तो मेरे को है ही 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। अगर 0/0 फॉर्म बन गई तो इत्थे मैं किसी भी एक नूं Z नूं या किसी भी एक नूं मैं कोई कॉन्सटेंट पुट करके दोबारा सोल्यूशन करना शुरू कर देनी हाँ। हुण कॉन्सटेंट के उपर डिपेंड करी जाएगी वैल्यूज़, जिमें जिमें के दी वैल्यूज़ पुट करी चलांगे उवें उवें आंसर। बस तुसीं इन्ना याद रखो कि अगर वैल्यूज़ 0 आ गई तो तुहाडे कोल इत्थे की बन जाते हैं, सॉरी इत्थे की बन जाते हैं, इनफिनाइट सोल्यूशन बन जाते हैं। पहला तो ये देखो कि तुहानूं इत्थों तक क्लीयर हो गया। ठीक है, पहली गल तो डिटर्मिनेंट हो सकता है 0 होवे, फिर डिटर्मिनेंट हो सकता है 0 ना होवे। अगर डिटर्मिनेंट 0 ना होया, ठीक है, तो उत्थे की बन जाता है, थोड़े को यूनीक सोल्यूशन बन जाता है। अगर थोड़े को डिटर्मिनेंट 0 आ गया और बाकी दियाँ जो वैल्यूज़ ने वो 0 नहीं आंदियां, ठीक है, तो थोड़े को की बन जाता है, नो सोल्यूशन बन जाता है, या इनकॉन्सिस्टेंट बन जाता है। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब कि नहीं जी पॉसीबल नहीं हैगा, सोल्यूशन ही नहीं हैगा। बट अगर सारा कुछ ही 0 आ जाता है, D1 D2 D3 और D, ठीक है, तो उत्थे थोड़े कोल की बन जाता है, इनफिनाइट सोल्यूशन बन जाते हैं। ठीक है, जेकर थोड़ा ये मैथड थोड़ा जिहा डिफिकल्ट लगता है ना, तो आप इन्होंने मिनटों के भी सॉल्व करांगे बड़ी जल्दी। तुसीं होर बहुत सारे तरीके ने जिन्होंने यूज़ करके ईजिली अपना जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैथड भी देखांगे, बट अज ये चीज़ करो ताकि थोड़े माइंड में ये चीज़ पक्की हो जाए। कल नूं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स शुरू करन तो पहला आप इसे नूं दोबारा रिपीट करके कंपेयर करांगे दूसरे मैथड नाल, किस तरीके नाल आप बड़ी ईजिली जो क्वेश्चन ने उन्होंने सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अज ही अगर दूसरा मैथड भी करवाता तो सारा होच पोच हो जाना है, तो इन्होंने चीज़ों को ध्यान रखना है बस। ठीक है, नैक्सट अगर आप गल करिए उस तो बाद किते ना किते ये भी आ जाता कि होमोजीनियस इक्वेशनस किहड़ियां होंदियां ने। होमोजीनियस इक्वेशन वो हो जांदियां ने जिथे मेरे को जिवें मैंने इत्थे लै लिया 3x + 4y = 0, 5x + 6y = 0। These equations are known as homogeneous equation, जिथे इक्वालिटी दे विच 0 ही हुंदा है। ठीक है, तो इत्थे एक चीज़ मैं देख पा रही हाँ, डी मेरे को कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, पर मेरे को D1 D2 ऑलवेज 0 ही होंगे। क्यों ऑलवेज 0 क्यों होंगे? क्योंकि मैं इत्थे की कर रही हाँ, अगर D1 निकाल रही हाँ तो D1 दे विच रो 1 की जगह तो मेरे को की आऊगा 0 0, और रो 2 की जगह तो मेरे को जो एलिमेंट है वही आऊगा 4 और 6। हुण जो एक रो या एक कॉलम 0 होगी फिर तो 0 ही हो गया ना, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पैंदा, कुछ मर्जी आई चले। ठीक है, तो उत्थे आपां कह सकते हैं कि D1 D2 ऑलवेज इत्थे की होंदे हैं 0 होंदे हैं। तो मतलब सारी कहानी किहदे उपर आके डिग गई? डी दे उपर, डिस्क्रिमिनेंट दे उपर। किहदे डिस्क्रिमिनेंट दे उपर? 3 5 4 6 दे उपर। ठीक है, तो हम देखते हैं इस चीज़ नूं की कहा जाता है इहदे विच
ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਡੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਡੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 0 ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਹੈ, ਨੀਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਹੈ, ਨੀਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਰਿਹਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ d1 d2 ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਥੇ 0 ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ 0 ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਟ੍ਰਾਈਵਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਵਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x y z ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਵਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, x ਵੀ 0 ਹੋਊਗੀ, y ਵੀ 0 ਹੋਊਗੀ ਔਰ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 0 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਵਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਡੀ 0 ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਡੀ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ, 0/0 ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਣੂਗੀ। 0/0 ਦੀ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਨੋਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫੀਨਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 0/0 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਨਫੀਨਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਟ੍ਰਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨੋਨ ਟ੍ਰਾਈਵਲ ਹੋਊਗਾ। ਨੋਨ ਟ੍ਰਾਈਵਲ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ 0/0/0 ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਜਸਟ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।